یہ ہے وقت میڈیا. پیش خدمت ہندوستان کے صنعتی اور ادبی شہر مراد آباد میں ہوا جشن صحت منور رانا آل انڈیا مشاعرے اور کبھی سمیلن کا شاندار ویڈیو. اس مشاعرے کو آرگنائز کیا سہیل حسن خان ویلفیئر سوسائٹی مراد آباد نے. کیونکہ یہ جشن منور رانا صاحب کے لیے تھا. بیماری کے بعد پہلی بار کسی مشاعرے میں شرکت کر رہے منور رانا صاحب نے پہلے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد مشاعروں پہ تبصرہ کیا اور پھر اپنی غزل سے لوگوں کو لطف اندوز کیا. ان کا یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، لیکن پہلے جینگو بنانا کی بات 40 سیکنڈ میں. انتاکشری اور گیمز کا ایپ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام. آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا. جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں. لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی. سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر. حکیم صاحب، نعت پاک سے مشاعرے کا آغاز ہو گیا اور ہم نے اپنی سب سے بڑی روحانی اور دینی عدالت سے خود کو وابستہ کر دیا. یقین ہے کہ ہمارا یہ سفر جو اب شروع ہوگا غزل کے حوالے سے، واقعی مراد آباد کی ادبی تاریخ میں بہت قیمتی ورق جوڑے گا. منور بھائی کو جب اعزاز دیا جا رہا تھا تو میرے تمام پترکار ساتھی اور فوٹوگرافرز یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 1 منٹ مل جائے، اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ 1 منٹ نہیں، میں آپ کو حیرتوں میں مبتلا کر دوں گا. آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ میں مشاعرے میں غزل کا آغاز آج کے صاحب جشن عالی جناب منور رانا کے کلام سے کروں گا. منور بھائی تشریف لائیں اور یہ ان سے محبت کرنے والے کروڑوں لوگوں میں سے جو ہزاروں مراد آباد میں موجود ہیں، جن کی محبتیں انہیں ایوارڈ کی شکل میں ابھی پیش کی گئی، ان کا شکریہ بھی ادا کریں، انہیں دعائیں بھی دیں اور ان سب لوگوں کو کلام سنائیں. اور کہاں ہیں میرے پریس کے دوست؟ تشریف لائیے. اور آپ ہیں، منور رانا صاحب ہیں. ایک اعلان اور بیعت کی، مشاعرے کا آغاز منور رانا صاحب کی غزل سے ہو رہا ہے اور یہ مشاعرہ مکمل بھی منور رانا صاحب کے کلام پر ہوگا. معزز حاضرین، میں شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں اہالیان مراد آباد کا، شہر جگر میں رہنے والوں کا، خاص طور سے نجم صاحب، یوسف ملک اور ان کے تمام احباب. یہی نہیں کہ انہوں نے مجھے آج اعزاز سے نوازا، ہماری بیماری کے زمانے میں برابر ان دنوں ہمیں تو فون اٹھانے کی اجازت بھی نہیں تھی، ڈاکٹروں نے بڑی پابندی لگا رکھی تھی، لیکن یہ کہ وہ ہمارے بیٹے سے یا ہماری اہلیہ سے وہ لوگ سب ہماری خبریں لیتے رہے. میں تمام لوگوں کا، یہ پہلی بار میں کسی مشاعرے میں آیا ہوں بیماری کے بعد. میں اس اسٹیج یا مراد آباد کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر میں ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے ان تمام محبت کرنے والوں کو سلام کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری بیماری میں دعائیں کی. اور شاید یہ معجزہ کہہ لیں کہ یہ صرف دعائیں تھیں. میں نے کسی زمانے میں ایک شعر بھی کہا تھا کہ پھر ہوا صرف چراغوں کا کہا کرتی ہے، جب دوا کچھ نہیں کرتی تو دعا کرتی ہے. تو جب ڈاکٹر نے جب اپنے حساب سے یہ کیا تھا کہ یہاں سے یہ یہاں کاٹ پیٹ کریں گے، لیکن پھر یہ ہوا کہ
डॉक्टर सुल्तान प्रधान, जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया बम्बई में, उन्होंने कहा कि हम यहीं तक पहुंचे थे कि हमारे 50 साल के तजर्बे ने बताया कि इसके आगे सब ठीक है। वाह! मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, हमारे साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं, और मैंने उनसे ये कह भी दिया था कि डॉक्टर साहब आप परेशान ना हो, अव्वल तो मेरी माँ जिंदा है, एक माँ दुनिया की तमाम मुसीबतों से लड़ने के लिए काफी है, और न के इत्तेफाक से वो तारीख जो थी वो मदर्स डे की थी, और उस मदर्स डे पे जाहिर सी बात है कि दुनिया की हर माँ जो है वो हमारे लिए उसने दुआएं की, जिसके नतीजे में मैं दिलचस्प बात बताता चलूं। अचानक ये सब हुआ, बिल्कुल मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं गया था, वो एक कहावत है कि गई थी औलाद मांगने, सुहाग भी खो के आ गई। मैं एक दांत उखड़वाने गया था लखनऊ में डॉक्टर शादाब के पास। उन्होंने कहा कि ये हिस्सा आपका मखदूश है, हम इसकी बायोप्सी करेंगे, और वही हुआ कि उसमें रिपोर्ट निकली कि साहब ये पोर्शन जो है इसमें कैंसर है। मैं घर आया, घर आने के बाद मैं अम्मी के पास गया, उनको भी मालूम हो गया था। ऐसे मौकों पर तमाम माएँ चुप हो जाती हैं, मेरी माँ भी चुप थी, कुछ बोल नहीं रही थी। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप परेशान ना होइए, आप मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ठीक होके बम्बई से आऊंगा, और अगर खुदा न खास्ता आपने कहीं जल्दीबाजी कर दी और आप चली गई तो हम आपके पीछे पीछे आएंगे और आपके पैर जाना कब्रिस्तान में लेट जाएंगे, इसलिए कि हम आपकी पहलौटी की औलाद हैं। मैं जब बम्बई से इलाज करा के मैं लौटा तो मैं एयरपोर्ट से सीधे मैं माँ के पास गया, अम्मा के पास, और वो बिल्कुल जैसे मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं 6 महीने का हूँ, साल भर का हूँ, 2 साल का हूँ, मुझे कुछ अंदाजा नहीं। वो मेरे गालों को, बालों को सब नोच रही थी यूं करके, और कह रही थी तेरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो ऐसा लगा कि जैसे ये 63 बरस का बूढ़ा फिर से 3 महीने का हो गया है, जैसे उसकी माँ दुलार कर रही। वाह वाह! मैं इस स्टेज पर ये दुआ करता हूँ कि खुदा हर आदमी को अपनी आफियत में रखे, जिनकी माएँ जिंदा हैं उनकी आप खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं और उनका साथ बहुत देर तक रहे। मैं आप तमाम हजरात को मैं कुछ शेर में अर्ज करना चाहता हूँ। एक मतलब ये अर्ज किया है कि अना कहते हैं स्वाभिमान को। दुनिया के, मैं ये मतलब करना चाहता हूँ, एक बात ये खास तौर से और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आजकल के जो हमारे मुशायरे हो गए हैं, इनमें एक खराबी हो गई है कि इसमें कम्युनलिज्म बहुत आ गया, फिरकापरस्ती बहुत आ गई। एक जमाना था ये जब 90-92 के जमाने में कि मुशायरे जो थे वो मदरसी आ गए थे, कवि सम्मेलन त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए थे। हिंदी वालों ने ये किया कि अपने कवि सम्मेलन को साफ किया और इस तरह के अनासिर को अलग कर दिया, उन्होंने अपने कवि सम्मेलन को बचा लिया। हम अभी तक अपने मुशायरों को नहीं बचा पाए। जब तक हमारे मुशायरों में 25 से 30% गैर मुस्लिम शरीक नहीं होते हैं, तब तक न हम उर्दू की हिफाजत कर सकते हैं, न इस मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं, न मुसलमान की हिफाजत कर सकते हैं। मैं दसबस्ता शहर जिगर में ये गुजारिश करता हूँ, ये गजल का शहर है, गजल से मोहब्बत करने वालों का शहर है, कि जो गजल का व्यापार है उसको कायम रहने दिया जाए। आज कम से कम आज की इस रात की ये शुरुआत की जाए कि ऐसी शायरी हम सुनाएं कि इससे हमारे और आपके दिल आपस में जुड़े। इस किस्म की शायरी से मेरा ख्याल है कि कोई मकसद नहीं हल होता है। मैं कुछ शेर में कर रहा हूँ जहाँ जहाँ से मुझे याद आ रहे हैं तमाम। अना एक शब्द है जिसके मानी है स्वाभिमान की। दुनिया के दिखाने को अना ओढ़े हुए है, दुनिया के दिखाने को अना ओढ़े हुए है, जो शख्स दुशाला भी मेरा ओढ़े हुए है। दुनिया के दिखाने को अना ओढ़े हुए है, जो शख्स दुशाला भी मेरा ओढ़े हुए है। और शेर ये है कि अब आगे जो अल्लाह की मर्जी है वो होगा, अब आगे जो अल्लाह की मर्जी है वो होगा। दूसरा मित्र मुझे याद ही नहीं इसका।
अब आगे जो अल्लाह की मर्जी है वो होगा। अब तक तो मेरा जिस्म दवा पड़े हुए है। मुझे याद आ गया, मैं यहाँ से मुझे और याद आ रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। काम आएगी कभी यही ठोकर लगी हुई, काम आएगी कभी यही ठोकर लगी हुई, तस्वीर थी मेरी तेरे घर पर लगी हुई। काम आएगी कभी यही ठोकर लगी हुई, क्या कहना, तस्वीर थी मेरी तेरे घर पर लगी हुई। शेर ये आप तमाम हजरात की नज़र है, खास तौर से यूसुफ मियाँ और नजमिया के लिए है कि काम आएगी कभी यही ठोकर लगी हुई। मैं जिंदगी की जंग भला कैसे हारता, मैं जिंदगी की जंग भला कैसे हारता, पूंजी थी खानदान की मुझ पर लगी हुई। मैं जिंदगी की जंग भला कैसे हारता, पूंजी थी खानदान की मुझ पर लगी हुई, पूंजी थी खानदान की मुझ पर लगी हुई। मौजें खिला रही थी मुझे अपनी गोद में, क्या कहना, मौजें खिला रही थी मुझे अपनी गोद में, मिट्टी छुड़ा रहा था समंदर लगी हुई, मिट्टी छुड़ा रहा था समंदर लगी हुई, मिट्टी छुड़ा रहा था समंदर लगी हुई। फिर यूं हुआ कि हार गया जिंदगी से वो, फिर यूं हुआ कि हार गया जिंदगी से वो, पीछे थी उसके मौत बराबर लगी हुई। फिर यूं हुआ कि हार गया जिंदगी से वो, क्या कहना, पीछे थी उसके मौत बराबर लगी हुई। और शेर ये है कि मेरी गजल में मेरी मड़क बरकरार है, क्या कहना, मेरी गजल में मेरी मड़क बरकरार है, हर शेर पर है मोहरे मुनव्वर लगी हुई। वाह वाह वाह, मेरी गजल में मेरी मड़क बरकरार है, हर शेर में है मोहरे मुनव्वर लगी हुई। एक मतलब ये है कि आप कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, क्या कहना, आप कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। आप कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाए, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाए। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाए। शेर ये है, सुनिएगा आइए साहब, दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाए, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाए, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारें आ जाए। ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों। तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाए, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाए, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। और शेर ये कि जिंदगी दी है तो फिर इतनी सी मोहलत दे दे, जिंदगी दी है तो फिर इतनी सी मोहलत दे दे, एक कमतर्फ का एहसान उतारे आज, एक कमतर्फ का एहसान उतारे आज। दो तीन शेर में और पढ़ना चाहता हूं। अभी जब आपके मैं वहां से लौटा बंबई से, तो मैंने सोचा कि पता नहीं कल क्या हो, तो मैंने रोजे रखे। बहुत दिन बाद मैंने 20-22 रोजे रखे लगातार। डॉक्टर ने मना भी किया कि नहीं शुगर है, अरे मैंने कहा नहीं ठीक है, जब शुगर में आम खा सकते हैं, और बल्कि हमने शेर कह दिया कि इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। जब सब काम कर सकते हैं, इंसान के हाथों की बनाई
खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। तो हमने कहा जब सब कर सकते हैं तो रोजे रखना चाहिए। बहुत दिन बाद मैंने इतने रोजे लाइन से रखे। उसी हालत में मैं मुंबई गया अभी, लेकिन फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि साथ इसकी सोनोग्राफी होगी, ये होगा वो होगा, तो फिर हमने हिम्मत टूटी तो मैंने छोड़ दिए। बहुत दिनों बाद जब मैंने रोजे रखे तो मैंने एक मसला कहा, बिल्कुल अजीब। मैं उनको जैसे जिंदगी में जैसे फिर से मैं लौटा था। देखिए इसे मतलब मैं अहले इल्म में पढ़ रहा हूं, तो मैंने मतलब ये कहा उन रमजान के दिनों में कि पुराने दर्द की शाखों पे फूल आते हैं, पुराने दर्द की शाखों पे फूल आते हैं। हटो हटो मेरे घर में रसूल आते हैं, पुराने दर्द की शाखों पे फूल आते हैं। हटो हटो मेरे घर में रसूल आते है। इम्तिहान में शामिल अगर ये झूला भी है, इम्तिहान में शामिल अगर ये झूला भी, तो हम भी फांसी के तख्ते पे झूल आते हैं। इम्तिहान में शामिल अगर ये झूला भी, तो हम भी फांसी के तख्ते पे झूल आते हैं। शेर ये गजल का क्या है, तो पहले ही बैठे शेर देखेंगे। अब एतबार के काबिल नहीं रही आंखें, अब एतबार के काबिल नहीं रही आंखें। कोई भी पूछे तो सब कुछ कबूल आते हैं। अब एतबार के काबिल नहीं रहे आंसू, कोई भी पूछे तो सब कुछ कबूल आते हैं। इस गजल का शेर आखिर ये है कि गजल में नादिरा कारी का शौक है, वरना क्या करना, गजल में नादिरा कारी का शौक है, वरना बहुत से काम हमें भी फजूल आते हैं। गजल में नादिरा कारी का शौक है, वरना ये गजल के सिर्फ 3-4 शेर और मैं जहमत देना चाहता हूं। उसका मतलब ये है कि गजल हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई, गजल हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई। बरेली में कहाँ मिलता है सुरमा पूछने आई। गजल हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई, बरेली में कहाँ मिलता है सुरमा पूछने आई। और शेर ये है कि मिला है ये सिला शायद हमें कांटों पे चलने का, मिला है ये सिला शायद हमें कांटों पे चलने का, कि हर खुशबू हम ही से अपना शजरा पूछने आए। बहुत अच्छा है। मिला है ये सिला शायद हमें कांटों पे, मिला है ये सिला शायद हमें कांटों पे चलने का, कि हर खुशबू हम ही से अपना शजरा पूछने आई। शेर ये है, हुमायूं खजीरा सुनिएगा, शेर ये है कि मेरे लहजे की सफाकी के चर्चे आम हैं इतने, मेरे लहजे की सफाकी के चर्चे आम हैं इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। अरे वाह, मेरे लहजे की सफाकी के चर्चे आम हैं इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। और वैसे ये शेर आखिर आपकी नजर है कि मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब चलने लगा तो सारी दुनिया पूछने आई। मैं जब चलने लगा तो वाह 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 वाह। तालियों की गूंज में माइक से रुखसत कीजिए आज के साहिब दर्शन जनाब मुनव्वर राना को। ये सच है कि आप मुनव्वर राना साहब से उनका कलाम सुन रहे थे, लेकिन ये भी सच है कि मुनव्वर राना नहीं, आज की नई और अछूती गजल आपसे बातें कर रही थी। और दोस्तों, बहुत कीमती बात हमारे भाई मुनव्वर राना साहब ने मुशायरों के ताल्लुक से कही। मुशायरे का मकसद होना चाहिए जैसा आज के मुशायरे का मकसद है। ये नजम साहब ने, यूसुफ मलिक साहब और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके ये मुशायरा इसलिए सजाया कि हम अपने अहद के महबूब फनकार की इज्जत अफजाई तो करें ही,
हम एकता और मोहब्बत और आपसी भाईचारे की भी ऐसी तहरीर लिखें कि हमारा मुशायरा वक्त के पेशानी पे लिखते कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे। तो ये मोहब्बतों का मुशायरा, भाईचारे का मुशायरा। आप देख रहे हैं मुरादाबाद का मुशायरा। ये है मुरादाबाद की तारीखी जामा मस्जिद। जी हाँ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का तारीखी शहर मुरादाबाद, जिसे 1624 में बसाया गया था। जी हाँ, शाहजहां के दौरे हुकूमत में शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम से मुरादाबाद शहर बसाया गया। उस वक्त के गवर्नर रुस्तम खान ने मुरादाबाद में एक मंदिर बनवाया और एक जामा मस्जिद, जो ये आप देख रहे हैं। जी हाँ, इस जामा मस्जिद की एक खासियत है जो हिंदुस्तान की और जामा मस्जिद से इसे जुदा करती है। जरूर देखें वो खास बात, और वीडियो के आखिर में वो खास बात हम पेश करने जा रहे हैं। जरूर देखें वीडियो के आखिर में। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, और इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब। शहंशाह गजल जिगर मुरादाबादी के शहर मुरादाबाद में हुए इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न सेहत मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने जनाब मुनव्वर राना साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए 1 लाख रुपए नकद देकर एजाज से नवाजा। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने। सोहेल हसन खां मुरादाबाद के मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत थे। जी हां, जनाब सोहेल हसन खां साहब समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के पूर्व महानगर अध्यक्ष जनाब शुएब हसन खां पाशा के वालिदे मोहतरम थे। सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद के अध्यक्ष हैं जनाब रईस खां साहब, उपाध्यक्ष हैं जनाब शहजाद कमर साहब, सचिव हैं जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, कोषाध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, सचिव हैं जनाब सलीम अहमद वारसी साहब, सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद खालिद साहब और सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद नदीम साहब। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना नुमाया किरदार अदा किया। मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, मुशायरे के कन्वीनर जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, उन सभी हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उनका सपोर्ट किया। मैं हूं आपका दोस्त शफीक खान और यह है मुरादाबाद की तारीखी जामा मस्जिद। जी हां, हम आप तक लेके आते हैं मुशायरे, लेकिन इस वक्त जामा मस्जिद के हवाले से, मुरादाबाद की जामा मस्जिद के हवाले से आपको एक जानकारी दे दूं। पूरे हिंदुस्तान में यूं तो कई जामा मस्जिदों में आप गए होंगे, मस्जिदों में आप गए होंगे, लेकिन इस तारीखी जामा मस्जिद की खास बात यह है कि ये इकलौती जामा मस्जिद है जो किसी नदी किनारे वाक़ है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये नदी जिसे कहते हैं हम राम गंगा नदी। बहरहाल कल रात आपने देखा जिगर मंच से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द आप ये पूरा मुशायरा हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो फिर आप इस वेबसाइट पर विजिट करें और YouTube चैनल पर पहुंच जाएं और वहां आप जीमेल से हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे मुशायरे के वीडियो मिलें तो अब हम व्हाट्सएप पे भी आ चुके हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हफ्ते में 2 वीडियो आप तक पहुंचा दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुशायरे के वीडियो हमारी टीम जो कवर करती है उसके देखे जाते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन उमेर के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, शहर जिगर मुरादाबाद से।